Now it's the course of revolution starting from 1890 to 91. So the revolution came and how it unveiled itself. The development of the French Revolution in the time period is 1890 to 91. जब इंकलाब आया the major development course of revolution क्या इसके ऊपर बहुत से question later again this question has been picked up from previous years and we can say the unveiling of revolution क्या कुछ हुआ हमने जो वाक़यात पहले पढ़ ली इसके बाद major developments क्या 89 to 91 is the time period so we covered all already I think 1789 में we covered May 1789 East States Treasury was convened, we covered, and then Red Rock was created, and then 17th June, 3rd East declared itself as the National Assembly of France. 20th June, Third Telescope. July, the Great Fair, 14th July, Bastille Incident, August, Declaration of Rights of Men and Citizens, October, Tuileries Mine Incident, and then in November 1789, Church to the property used to nationalize. हुकूमत ने National Assembly of France ने जो प्रॉपर्टी थी चर्च की उसको कन्फिस्केट कर लिया नेशनलाइज कर दिया सब पहले किसी प्रॉपर्टी थी चर्च की तो 41% clergy owned more than almost 10% of the land वो तो हमने स्टार्ट नहीं किया 10% जो जमीन थी जो फ्रांस की वो चर्च की थी ना जो कैथोलिक चर्च था प्रीस्ट थे बिशप्स थे वो जमीन ओन करते थे 10% लैंड भी नहीं कर सकते हुकूमत जो है नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस चर्च के पास जो लैंड थी वो नेशनलाइज करके हुकूमत अपने कब्जे में कर ली ऑब्जेक्टिव्स यही आते हैं बास्टिल का हुआ डेंस कोड का हुआ तो ये सीक्वेंस में है साहब यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स यहीं से ही अटेम्प्ट हो जाएंगे इसीलिए ये टाइमलाइन थ्रू आउट लेक्चर्स आई ट्राइड के सारी ही टाइमलाइन सीरीज में होंगे सीक्वेंस तो यहीं से आपके सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे अगर नॉर्मल एक स्टैंडर्ड पेपर बना तो 16 17 ऑब्जेक्टिव्स आप इन्हीं स्लाइड्स और एक जो बुक पढ़े वहीं से कवर हो जाएगी सेपरेट पुश नहीं करना पड़ेगा बहुत मुश्किल कर लिया तो देन सर ये 19 20 तैयार है और उसको कभी ट्राई नहीं करना क्यों तो नहीं आएगा सर ये चर्च की प्रॉपर्टी किंग ने नेशनलिज्म ऑफ फ्रांस was to nationalize के लिए कर so we covered these incidents पहले वाले तो हमने सारे कर लिए incidents we covered 89 99 है ये covered जुलाई के अंदर कुछ 90 के अंदर incidents जो हुए नाम न्यूज़ को 91 के अंदर I covered these incidents this is Constitution of Declaration legislated of Bernese incident Berlin's declaration Constitution promulgate करेगी National Assembly of France and then election would be in France I cover each of these contents one by one so पहले July 1790 Civil Constitution of Clergy National Assembly of France अब वो ये Constitution of Clergy को इसको अनाउंस किया जाएगा नंबर 1 चर्च की प्रॉपर्टी confiscated की गई priests became salaried class टैक्स वो जो टैक्स दिया करते थे 1/10 of land के ऊपर वो abolish कर दिया अब चर्च clergy टैक्स नहीं ले सकती reduction of bishoprics एडमिनिस्ट्रेटिव ये डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे जो बिशप्स की कंट्रोल में हुआ करते बिशोप्रिक्स इज द कंट्रोल ऑफ बिशप्स ओवर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स तो जो डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद थी जो उनका कंट्रोल था उनको कम कर दिया गया एजेंसी अथॉरिटी ऑफ पॉप वाज रिड्यूस्ड इलेक्शंस ऑफ के प्रीस्ट और बिशप्स के लिए clergy after clergy was constitution पे oath लेंगे otherwise they would be labeled and called as refractory or deviated clergy उनको civil duties perform करना अलाउ नहीं किया जाएगा that is the constitution of clergy July 1790 legislated of unionization laborers की जो strikes थी उनको बैन किया गया ताकि law and order की situation को stabilize किया जा सर ये पिछले स्लाइड पे पॉइंट नंबर 3 क्या है इसका pronunciation की टेक्स्ट वैसे टेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेकिन इस टेक्स्ट मैंने जब किया था कभी तो इट्स 10% को जो टैक्स दिया करती थी क्लर्जी उसको अबॉलिश कर दिया गया जब क्लर्जी टैक्स नहीं ले सके बैन किया गया इस यूनियनाइजेशन को स्ट्राइक्स bring stability in a sense of a law and order situation. And then Berlin's incident, June 1791. The ruling family, the King and Queen, they tried to escape France. France stayed करने की जंग की है to the Austrian borders. और वहाँ पे जाके they were supposed to be with the Austrian army. ताकि फ्रांस के अंदर जो इंकलाब आ चुका है National Assembly revolutionaries तो उसको खत्म किया जाए. बादशाह क्वीन फ्रांस
एस्केप किया, बॉर्डर्स पे गए, फ्रेंच बॉर्डर्स के ऊपर, वहाँ उसने आर्मी से मिलना था, पर रेवोल्यूशन को खत्म करने के लिए जो है वो जो स्ट्रेटजी थी उसको क्राफ्ट करना था, उसको डिजाइन करना था, पर दे वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द बॉर्डर्स, इनको पहचान लिया जाएगा बॉर्डर्स के एरियाज में, एंड देन दे वुड बी ब्रॉट बैक टू पैरिस. और फिर अगेन थ्रू आउट द जर्नी दे वुड बी मॉब्ड एंड ridiculed when they would be brought back to Paris. So Berlin's incident was like, it was like a treason against the revolution, a sort of a treason against the revolution, a conspiracy against the revolution. कि बादशाह जो हैं लुई 16 वो इनकलाब को, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज तो कर चुके थे, लेकिन स्टिल ऑन नहीं कर रहे, बल्कि वो इनकलाब के खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं, ऑस्ट्रियन आर्मी को मिलने जा रहे थे ताकि इनकलाबी जो हुकूमत है उसको खत्म किया जा सके. So it was a sort of treason that he was commit करने की attempt किया गया, although they were recognized and brought back, but still later on उसके खिलाफ ट्रायल्स होंगे treason के कि वो उसने इनकलाब के खिलाफ जो है वो बगावत की और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा later on. So he would be executed. So Berlin's incident is that incident when the king tried to escape France and they wanted to break the absolutist monarchy, the power of absolutist monarchy back in France and overthrow the revolutionary government, but they would be recognized the borders and then brought back. That's Berlin's incident, June 1791. So June में बादशाह को जो है वो वापस लेके आए, वो इनका मजाक उड़ाया, इनको टॉर्चरिंग यहाँ पे किया गया. So there was a reaction from the outside world, particularly from Austro-Hungarians and the Prussians, and that is Berlin's declaration. क्वीन को जब वो वापस लेके आए तो फिर जो है वो स्प्रेड किया गया, कहीं पे है हेयर्स टर्न वाइट उस जर्नी के दौरान, इतनी वो बेचारी टेंस हुई, परेशान हुई. तो अब जो रेवोल्यूशनरी हुकूमत थी वो मोनार्की क्वीन को अब वो जरा ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो रिएक्शन आया इंटरनेशनल कम्युनिटी से, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रो-हंगेरियन से. और जो बहन है वो बिसीज करेगी, इम्प्लोर करेगी अपने भाई से कि मेरा जो क्राउन था, जो मेरी हुकूमत थी वो छीन गई है मुझसे, तो आप मेरी मदद कीजिए. So that would be the Berlin's declaration. The Berlin's declaration was कि Frederick William II of Prussia, German state, हमने recognize किया कि Germany would नहीं डाले वो various German small states. So Germans और ऑस्ट्रिया का जो बादशाह था ल्यूपोल्ड II, ल्यूपोल्ड भाई था वैलेंटाइन का, फ्रेंच क्वीन का भाई था ल्यूपोल्ड II. तो ऑस्ट्रो-हंगेरियंस और जर्मन्स की तरफ से थ्रेट किया गया नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस की हुकूमत को कि अगर आपने मोनार्की को कुछ भी कहा तो फिर हम इन्वेड करेंगे फ्रांस के. और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रो-हंगेरियंस की मदद करता है तो जर्मन्स यानी प्रशियंस और ऑस्ट्रो-हंगेरियंस वर विलिंग टू इन्वेड एंड अटैक फ्रांस एंड रिस्टोर मोनार्की इन फ्रांस, बट दे नीडेड इन द हेल्प ऑफ ब्रिटेन. इंग्लैंड उनकी मदद करते तो वो विलिंग थे हेल्प करने के लिए, मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए, रेवोल्यूशनरी हुकूमत को खत्म करने के लिए, और उन्होंने ये थ्रेट किया कि आप किंग क्वीन को जो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ कोई अटैक नहीं करेंगे. सो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर अब धमकी मिली है नेशनल असेंबली रेवोल्यूशनरी हुकूमत को, जो एक्सटर्नल फ्रंट से वॉर की इंटरवेंशन की जो है वो धमकी मिली है, एंड देन दे वुड रिस्पॉन्ड इन कमिंग मंथ्स. So that is Berlin's declaration. इसमें कि ऑस्ट्रो-हंगेरियन जर्मन्स वार्न कर रहे हैं फ्रेंच नेशनल असेंबली रेवोल्यूशनरी हुकूमत को against harming the king and particularly the queen and demanding that French monarchy be restored, क्योंकि वो ये सोचते थे कि वो real power जो है वो Christian white monarchs हैं, real sovereigns of France. ये नाम था यूरोपियन सोसाइटी के अंदर. यूरोप के अंदर जो नाम था, norm is a standard of behavior. यूरोप के अंदर जो norm था that was कि जो white Christians हैं वो legitimate rulers हैं, monarchs हैं फ्रांस के बाकी मुल्कों के अंदर भी. So the norm in European society was white Christians, जो families, ruling families हैं वो legitimate हुक्मरान हैं उन मुल्कों के. यानी Louis 16 white Christian legitimate हुक्मरान हैं, जायज हुक्मरान हैं फ्रांस. That was the norm, that was the standard practice in European society. This is what they were arguing, कि आप ये harm नहीं पहुंचाएंगे
और जो लेजिटिमेट हुक्मरानी है वो लेजिटिमेट जो खानदान है जो रूलर्स हैं उनको दी जाए वापस and it was a sort of big threat that they would intervene militarily against the revolutionary government of France. That is Venice Declaration, August 1791. Venice के बाद फिर धमकी देनी पड़ी because अब वो queen ने was in trouble now because वो जो conspired किया उन्होंने revolution against. The response was the Venice Declaration. The threat of war was there from external world. So August 1791. Next one, Constitution was promulgated by National Assembly of France. National Assembly of France अब नया आइन जो है उसको अनाउंस करेगी और Louis XVI, this is very important. Louis XVI approves the National Assembly's new constitution. Monarch उसको approve करता है. So monarch approve कर रहा है मतलब कि monarch को वो still अभी recognize कर रहा है he is the king of France. Still he was recognized as the king of France और वो उस नए आइन को approval दे रहा है. So France became a constitutional monarchy. So now a political transition occurred in France. France moved from an absolutist monarchy towards a constitutional monarchy. ये shift आ रहा है, political एक shift ये आ गया. Then we have the legislature. Could be there issues of war and peace, army का control, legislature के कब्जे में चला जाएगा. France को decentralize किया गया, governance के issues होंगे. France को administrative divisions में divide किया गया, जिनको departments कहा जाता है. Provinces equal size के होंगे. Provinces को उनके geographical affiliations, characteristics के मुताबिक नाम वगैरह दिए जाएंगे. सबके अपनी elected assemblies, divisions, subdivisions, अपने national guards होंगे. अपना taxation system, tariffs को internal tariffs को abolish किया गया. Weight payment systems जो हैं वो single standardized किए गए. Judges, public prosecutors के elections होंगे. Liberal, justice जो है state जो है वो liberally economic capitalist policies pursue करेगी. Adam Smith की policies. Religious tolerance would be there and rationality को emphasize किया जाएगा. और फिर इस आइन के मुताबिक elections होंगे. And the new political structure would be in France, and that is known as National Legislative Assembly. आपने ये जो political structures हैं इनमें थोड़ा सा differentiation जो है वो देख रहे हैं. पहले है National Assembly of France. Now it's National Legislative Assembly. Third, he state declared itself the National Assembly of France. ये constitution देगी, elections करवाएगी, and the new political structure would be National Legislative Assembly of France. And they came in power in October 1791. National Legislative Assembly. Yeah. Because now in National Legislative Assembly, the new people would be there in power. What main which constitution है इसमें देखिए governance का structure है उसके अंदर भी तब्दीलियां की जा रही हैं. Constitutional monarchies, there religious tolerance, economic वो सारी चीजें. और इसके अंदर जो members होंगे they would be from different parties. और revolution को 15 तरह की parties में divide किया जाएगा जो आराम से आगे चल के build up करेंगे. तो difference जो है अभी हमने कर रहे हैं इन क्या फर्क है फिर मैंने क्या किया ये वो नहीं पड़ता. I'll explain that eventually and we are going to be these parts. So October के अंदर beginning यहाँ पे नहीं करते. National Legislative Assembly October 1791 began its power. So this is what we covered in this section. 89 से 91 जो major incidents. 89 हम already covered. और 90 के लिए civil constitutional convention, HPI law, Venice incident, Venice declaration, constitution, elections हुए, and then October National Legislative Assembly. So we covered that 6 time series. ठीक है जी हमने कर लिया. And the next one is from where we left 91 से 92. अब next year की तरफ हम move कर रहे हैं. इसमें क्या incidents हुए? तो ये I started from June ताकि वो information retain हो जाए जहाँ तो point हमने छोड़ा है वहीं से आगे 40%. June Venice incident we covered already. What was that incident? August Venice Declaration. A threat came from Germany and also Hungary to the national revolutionary government. And then our elections, the constitution was declared and the elections held in France. And the new political setup was in October 1791. That is National Legislative Assembly. So यहाँ तक हमने कर लिया. From onwards now I'll explain the remaining points. One by one. So first one is declaration of war by the National Legislative Assembly, April 1792.
ये एक डेटा आप लोग पेज पे लिख लें, इसको रिटेन करने की कोशिश करना, because I'll be repeatedly using this date. April 1792, National Legislative Assembly में वो war declare करते हैं. National Legislative Assembly declared war against Austro-Hungary and Germany and Russia. So National Legislative Assembly war declared against Austro-Hungary and Germany. Why? Because of Venice Declaration. Venice Declaration के अंदर Austro-Hungarians ने और Germans ने certain किया था revolutionary reforms को. That they have been invaded and attacked France, England went back them. So the threat of war came from outside of the world. And then they in 92, first month, Jan 92 के अंदर 1792 National Legislative, first month, January के अंदर 92 के अंदर नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने अल्टीमेटम दिया ऑस्ट्रो-हंगेरियंस को और जर्मन्स को, रशियंस को कि आप पेंडिक्स डिक्लेरेशन विड्रॉ करें. तो आपने धमकी लगाई या वॉर की इन्वेंशन की, आप उसे विड्रॉ करें, बट दे रिफ्यूज टू डू दैट. वो उस डिक्लेरेशन को, पेंडिक्स डिक्लेरेशन को विड्रॉ नहीं करेंगे इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 92, और जब वो पेंडिक्स डिक्लेरेशन से विड्रॉ नहीं करेंगे अप्रैल 92 National Legislative Assembly war declared कर देगी against Austro-Hungarians and Prussians. तो बजाय इसके कि वो war declare करते, they would declare. So that is the beginning point. So we covered Venice incident, Venice Declaration, and now the declaration of war. ये point. April 92, declaration of war by National Legislative Assembly. National Legislative Assembly को जो political club, जो political party dominate कर रही, they were known as Germans. They were radicals. Germans radical political club था, और इनका जो leader था, Brissot उसका नाम था. So under the leadership of Brissot, German club जो था, ये फिर National Legislative Assembly के platform के through अपनी उस political लोगों को इकट्ठा करेंगे और war declare करेंगे against Austro-Hungarians and Prussians. Because of Venice Declaration. अच्छा कि अल्टीमेटम दिया, जब उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, then they would declare war against them. तो ये था declaration of war under the leadership of Brissot की leadership के अंदर Germans political power में था, National Legislative Assembly ये war declare करते हैं. और Austro-Hungarians and Prussians, Germans already anticipated कि France जो है वो war की तरफ जाएगा, but still French prepared नहीं थे for the war. और early defeats, series of defeats होंगे फ्रांस के इस war के अंदर when they declared the war. और फिर फ्रेंच आर्मी एक्सटर्नल थ्रेट पे war लड़ने जाएगी तो वहां से हारेगी, तो इनमें फ्रेंच बॉर्डर्स को भी ओपन छोड़ दिया जाएगा. तो war लड़नेंगे तो वहां से मार पड़ेगी, फ्रेंच बॉर्डर्स को भी ओपन छोड़ दिया जाएगा. तो अब ऑस्ट्रो-हंगेरियंस और जर्मन्स जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स फ्रांस. अप्रैल में war डिक्लेयर की और war हारना ये स्टार्ट हुई. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, August, September, they were on the losing side. April से और अब war नहीं रुकेगी, war 1815 तक नहीं रुकेगी. इसलिए मैंने कहा कि April 1892 very important है. War अब continue होगी till Napoleon Waterloo की battle तक war will now continue in Europe. April 92 war start होगी, and during the initial phase of the war, during the beginning phase of the war, under the National Legislative Assembly, they were on the losing side. French revolutionary government was on the losing side, on the losing streak. ये war hard phase आएंगे after April, May, throughout till September जो ये war hard हो जाएंगे. तो अप्रैल में war start हुई, अप्रैल, मई, जून तक war हार रही है National Legislative Assembly की जो गवर्नमेंट है, जर्मनीज की जो हुकूमत है, ब्रिसॉट की लीडरशिप है, they are on the losing streak. जब ये war हार रहे थे अप्रैल, मई, जून, तो बादशाह again Louis XVI he would react against that, against the declaration of war against Austro-Hungarians and Prussians. और वो क्या करेगा, वो ब्रिसॉट को रिमूव कर देगा लीडरशिप पोजीशन से. कि ब्रिसॉट जर्मनीज की लीडरशिप के अंडर नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने वॉर डिक्लेयर की थी और ये वॉर हार गए, कॉन्टिन्यूसली वॉर हार गए. तो इवेंचुअली किंग क्या करेगा, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो पॉलिटिकल क्लब जो डोमिनेंट पोजीशन में था, उनका जो लीडर था उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि दे वर लूजिंग स्ट्रीक, वॉर हार रहे थे, तो उसको रिमूव किया जाएगा.
तो जब उसको रिमूव किया जाएगा इन जून 1792, तो जायरेंस जो थे, जो प्रेसिडेंट का था, ये फिर बादशाह के महल के बाहर फिर एहतजाज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, इसको रिस्टोर किया जाएगा. That incident is known as the Tuileries II incident. Tuileries I was the women's march to Versailles, when the king and queen would be brought back to Paris. Paris के इस महल में इनको सेटल किया जाएगा. That is Tuileries I incident. And Tuileries II फिर बादशाह के महल, Tuileries is the name of the palace जहाँ पे मुगल फैमिली रह रही थी. तो ट्यूलरीज के महल, बादशाह के महल के बाहर जायरेंस जो क्रिटिकल क्लब था उसके मेंबर्स एहतजाज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे. तो दिस ऑर्डर को जो लीडरशिप पोजीशन से रिमूव किया गया है उसको रीइंस्टॉल किया जाए, रिस्टोर किया जाए, लेकिन वो नहीं किया जाएगा. दैट इज द ट्यूलरीज II incident, जून 1792. जुलाई नेक्स्ट मंथ ड्यूक ऑफ ब्रंसविक. अब जुलाई के लिए Duke of Brunswick was a Prussian general, German general थे. अब जुलाई के लिए Germans यानी Prussians और Austro-Hungarians ये अब मिल के फ्रांस के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे. Now the division inside France हो जाएगा. यानी एक तो ज्वाइन करेंगे जर्मन फोर्सेस, ऑस्ट्रियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे और ये फ्रांस के मुल्क के अंदर जो है वो वॉर को स्टार्ट कर देंगे. They would enter inside France and then in coming months they would be moving towards Paris. और फ्रेंच हुकूमत, रेवोल्यूशनरी हुकूमत वॉर कॉन्टिन्यूसली आ रही है. ये बॉर्डर एरिया से अब मूव करना स्टार्ट करेंगे. तो जुलाई के अंदर दे वुड स्टार्ट देयर एंट्री टुवर्ड्स फ्रांस. और वहाँ पे फिर ये एक और थ्रेट लेकर ड्यूक ऑफ ब्रंसविक जो प्रशियन जनरल थे, एंड दैट वाज अगेन दैट कि जैसे ही जर्मन ऑस्ट्रो-हंगेरियंस एंटर होंगे पेरिस के अंदर तो वो मोनार्की को रिस्टोर करेंगे, क्योंकि वाइट क्रिस्टन जो है वो लेजिटिमेट हुक्मरान है फ्रांस का. तो उनकी लीगल जो पावर्स है उनको रिस्टोर किया जाएगा. फ्रांस के अंदर जो एनार्की है, इंटीरियर फ्रांस के अंदर जो एनार्की है, क्योस है, उसको खत्म किया जाएगा और थ्रोन की लीगल पावर को रिस्टैब्लिश किया जाएगा. बादशाह की कुछ सिक्योरिटी है, उसकी जो लिबर्टीज है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसको वापस दी जाएगी. सो क्योंकि वही लेजिटिमेट हुक्मरान है फ्रांस का, तो उसको रिस्टोर किया जाएगा. सो अगेन थ्रेट वाज कमिंग फ्रॉम द जर्मन्स. When its declaration and Brunswick की ये जो declaration है, जो threat है, तो revolutionary हुकूमत को externally धमकियां मिल रही हैं, war continue है, ये war हार रहे हैं. Again the threat came in July 1792, Duke of Brunswick, the Prussian general. अगस्त के अंदर तो war ये हार रहे हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई फ्रेंच रियासत revolutionary हुकूमत war continuously हारती चली जा रही है. और अब फॉरेन फोर्सेस जो है ऑस्ट्रो-हंगेरियंस और जर्मन्स अब वो इंटीरियर फ्रांस, पेरिस की तरफ मूव करना स्टार्ट करें. बॉर्डर एरिया से देयर कमिंग, पेनिट्रेटिंग इनसाइड द कैपिटल. बट अभी पहुंचे नहीं. बिफोर पेरिस एंट्री से पहले ही कोर्स ऑफ वॉर रिवर्स होगा. फिनिश कवर दैट. सो जुलाई के अंदर, सो जून ट्यूलरीज II, जुलाई ड्यूक ऑफ ब्रंसविक थ्रेट केम, एंड देन अगस्त द इंस्ट्रक्शन occurred in Paris कम्यून. जुलाई अगस्त के अंदर फ्रांस के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली पेरिस के अंदर म्यूनिसिपल जो हुकूमत थी पेरिस के अंदर, उसके अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन हुई और उसको खत्म कर दिया. तो पेरिस के अंदर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट में तब्दीली है और जो नया स्ट्रक्चर पावर है उसको कहते हैं पेरिस कम्यून. पेरिस कम्यून जो है वो ये क्या है, पेरिस के अंदर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है, उसको तब्दील किया और पेरिस कम्यून जो है ये पावर में आएगा. और ये ट्रांजिशनल अथॉरिटीज के थ्रू अब फ्रांस को गवर्न करने की अटेम्प्ट किया है. और इसके अंदर पेरिस के अंदर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट चेंज हुई और नया रेवोल्यूशनरी कम्यून जो है और ये ट्रांजिशनल अथॉरिटीज के थ्रू अब फ्रांस के अंदर हुकूमत को चलाया जाएगा. और जो ये चेंज लेके आएगा उनको जैकबिन्स का. There are differences between Jacobins and Jarenins. I'll cover in a while. वो हम उसको कर लेंगे. लेकिन हुआ क्या कि अगस्त के अंदर जैकबिन जो पॉलिटिकल क्लब था ये पेरिस की म्यूनिसिपल हुकूमत को तब्दील करेगा और जैकबिन्स पेरिस की म्यूनिसिपल हुकूमत को संभालेंगे. ये प्रोविजनल अथॉरिटीज, प्रोविजनल इंटर्म या ट्रांजिशनल अथॉरिटीज के थ्रू फ्रांस के अंदर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील करेंगे. और ये बेसिकली फिर एग्जीक्यूटिव बनाएंगे पेरिस कम्यून पर. ट्रांजिशनल अथॉरिटीज होंगी, एग्जीक्यूटिव की ट्रांजिशनल अथॉरिटीज से बनाएंगे और ये फ्रांस की तरफ हुकूमत को संभालना शुरू करेंगे. जबकि फ्रांस की गवर्नमेंट वाज नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन.
इसी स्ट्रक्चर के अंदर पेरिस कम्यून वाले जो थे वो नेशनल असेंबली को डोमिनेट करना शुरू कर दिए। द रूलिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली। पेरिस कम्यून वाले देखे में पेरिस ये एक म्युनिसिपल स्ट्रक्चर था, लेकिन ये म्युनिसिपल स्ट्रक्चर ग्रेजुअली डोमिनेट करने लग जाएगा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जैकबिन जो क्या था, ये बेसिकली पेरिस कम्यून में आएंगे, ये ट्रांजिशनल अथॉरिटीज बनाएंगे और ये नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे और इसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। और पेरिस कम्यून में जैकबिन जो अल्ट्रा रेडिकल क्लब था, एक्सट्रीम रेडिकल्स जो थे वो पावर में आए। जैकबिन्स फिर रेडिकल्स, जैकबिन्स एक्सट्रीम रेडिकल्स, दैट इज एन अल्ट्रा रेडिकल्स। तो ये एक डिफरेंस और ढेर सारे कवर इन अ वाइल, ढेर सारी और चीजें कवर करेंगे। तो पेरिस कम्यून ट्रांजिशनल अथॉरिटीज के थ्रू ये क्या करेंगे, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, मिलिट्री, जस्टिस, नेवी को रीऑर्गेनाइज करके नेशनल रेवोल्यूशनरी कम्यून जो है फिर नेशनल लेजिस्लेटिव के अंदर, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस करेगा और उसमें वो स्ट्रांग होना स्टार्ट कर देंगे। ये इतने पावरफुल कैसे हुए पेरिस कम्यून वाले? एक दिन का साथ ये सेंस क्लॉट्स थे। ये जो सेंस क्लॉट्स था, ये वायलेंट जो लोग थे ये इसमें शामिल थे। द पुअर इसमें थे और कंट्री साइड ही इलाकों से लोग, गरीब तबका, वायलेंट जो लोग थे वो फिर इनके साथ खड़े होंगे। तो रियल जो पावर थी अब वो पेरिस कम्यून के पास थी। और ये क्यों ताकतवर हुए? क्योंकि जो गरीब तबका था, जो वायलेंट लोग थे, जो मॉब था वो इनका साथ देगा। सेंस क्लॉट्स थे, इलाकों से लोग आए जो रेवोल्यूशनरीज, वायलेंट, वो सब इनके साथ खड़े होंगे। और ये पेरिस के अंदर म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स के थ्रू, ट्रांजिशनल अथॉरिटीज, एग्जीक्यूटिव के थ्रू और इवन नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट डालते हुए ये फ्रांस के अंदर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। सर ये लोग थर्ड स्टेट में नहीं थे जिनकी अपन बात करें, सेंस क्लॉट्स, लोअर क्लासेस ऑफ पेरिस, थर्ड स्टेट में नहीं थे। एग्जैक्टली, वो थर्ड स्टेट में, थर्ड स्टेट में सेंस क्लॉट्स भी थे, पेजेंट्स भी थे, बुर्जुआ भी सारे। अब उस सेंस क्लॉट्स एंड थर्ड स्टेट में वो जो वायलेंट आर्म्ड, यानी वो जो रूलिंग आर्म्ड लोअर क्लासेस जिसको हम सेंस क्लॉट्स कहते हैं, और पेरिस के अंदर जो थे या रूरल एरियाज में सेंस क्लॉट्स अब किसका साथ देंगे? इनकलाब तो आ गया, थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली ने आइन दे दिया, नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया। तो वो जो थर्ड स्टेट के अंदर सेंस क्लॉट्स था, अब वो किसका साथ देगा? पेरिस कम्यून का जो तबका है, जैकबिन पॉलिटिकल क्लब, सेंस क्लॉट्स के साथ खड़े हो जाएंगे। सर तो इसका तो ये मतलब हुआ कि तो पहले मुनादी थी और अब सर जो एनएलए सर इसकी मुनादी चल रही है। हाँ, एक पहले मुनादी वाज अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन, अब एनएलए नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। नाउ वी वर द पावरफुल फैक्शन। अब एनएलए के अंदर एक और फैक्शन ताकत में आना शुरू करेगा, वो था पेरिस कम्यून, जैकबिन क्लब। और इस जैकबिन क्लब को जो सपोर्ट कर रहा था तब दैट वाज सेंस क्लॉट्स। विदिन नेशनल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली एक और फैक्शन खड़ा हो जाएगा और ये उसको डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा। और ये भी कुछ रिफॉर्म्स क्लियर किए जाएंगे फ्रांस के अंदर। यूनिवर्सल सफरेज, सिविल पॉपुलेशन को आर्म किया जाएगा, ह्यूमैनिटी के जो रिमेनिंग प्रिविलेजेस डिमोलिश किए जाएंगे, इमिग्रेंट्स जो फ्रांस छोड़ के अरिस्टोक्रेसी और जो क्लर्जी गई थी उनकी प्रॉपर्टीज को एक कंसीडर करेंगे। और जिस अंदाज से फ्रांस को पॉलिटिकली चलाया जा रहा था, उस फोर्स को रिवर्स किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। कैसे चेंज किया जाएगा? That was first time. Germany leader Brissot wanted Louis XVI to remain in power. नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली की हुकूमत है, इसको जिस पॉलिटिकल क्लब ने डोमिनेट किया उसको हम कहते हैं जर्मनिस्ट। ब्रिसॉट कैलकुलेटर what they wanted, they were in a favor in Louis XVI to remain in power. So they were in favor of a constitutional monarchy. Jacobins would not be in favor of a constitutional monarchy. जो जर्मन क्लब था नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली का जिसने वोट डिक्लेयर की, they were in favor of a constitutional monarchy. Or Brissot wanted Louis XVI to remain in power. Later on, जो पॉलिटिकल क्लब डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा, दैट इज जैकबिन क्लब, they were anti-monarchy. और हमने देखा कि पेरिस के अंदर पेरिस कम्यून जब म्युनिसिपल हुकूमत को संभालेगा, इनका साथ देंगे सेंस क्लॉट्स, आर्म्ड मॉब इनका साथ देगा,
और ये नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज करना शुरू करेंगे, दे वर एंटी मोनार्की एंड दे वर इन फेवर ऑफ रिपब्लिक. So gradually France would move from absolutist monarchy to a constitutional monarchy and eventually towards a republic. Jacobins were in favor of republic. तो ये अब political course के अंदर वो जो change आना शुरू हो रहा है, that was basically that point. कि जैसे ही पेरिस कम्यून को जो पॉलिटिकल क्लब जैकोबिन्स डोमिनेट करना स्टार्ट किया, ये नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिफॉर्म्स फिगर करेंगे, लॉ मेकिंग करेंगे, तो फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था, स्ट्रक्चर जैसे फ्रांस को गवर्न किया जा रहा है उसके अंदर तब्दीली आएगी. और फिर नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली को सितंबर के अंदर ये डिसॉल्व करेंगे, फिर इलेक्शंस होंगे और एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पावर में आएंगे, इसको कहते हैं नेशनल कन्वेंशन. तो इसलिए मैंने कहा था कि आपने नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ फ्रांस और अब नेशनल कन्वेंशन, इन तीनों पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस जो है उसमें डिफरेंस जो है उसको देना है. ठीक है, मैं डिफरेंसेस है. ठीक है जी, तो ये फिर ग्रेजुअली मूव करेंगे टुवर्ड्स नेशनल कन्वेंशन. नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली को ये सितंबर में डिसॉल्व करेंगे, नए इलेक्शंस होंगे और जो नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पावर में आएगा that is national convention. और जैसे ही नेशनल कन्वेंशन पावर में आएगा, फ्रांस में बिगा रिपब्लिक. तो फ्रांस फिर एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मूव करता हुआ रिपब्लिक की तरफ शिफ्ट करेगा. तो नेशनल कन्वेंशन वुड बी दैट. Sir, primarily this happened just within a month. In couple of months. So it started in August. अगस्त के अंदर जैकोबिन्स पेरिस की म्युनिसिपल हुकूमत को जो है वो चेंज करते हैं, एंड देन they would become a dominant players in coming months. In the middle of August and then in coming months they would be getting stronger. How I discuss that, अभी नहीं वो काफी चीजें हैं जो डिस्कस. 9th को म्युनिसिपल हुकूमत में तब्दीली आई, जैकोबिन्स इसको लीड करेंगे और ग्रेजुअली फिर हम देखते हैं कि ये नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज करेंगे. 9th को पेरिस के अंदर तब्दीली आई म्युनिसिपल हुकूमत की. 10th अगस्त ट्यूडरीज 3 इंसिडेंट. एंटी मोनार्की जैकोबिन्स, देखिए डिफरेंस भी आ रहा है, पहले कुछ चीजों में समझ आ रहा है. तो जैकोबिन्स के एंटी मोनार्की, जैकोबिन्स they were in favor of a constitutional monarchy. Resort wanted Louis XVI to remain in power, the Jacobins, but they were anti-monarchy. जैसे ही ये पेरिस के अंदर 9 अगस्त को म्युनिसिपल हुकूमत संभालते हैं, 10 अगस्त को ये बादशाह के महल के बाहर एहतजाज करेंगे. जो रेवोल्यूशन, जो रॉयलिस्ट प्रेस थी उसको खामोश कर दिया जाएगा. इस महल के बाहर डेमोंस्ट्रेशंस होंगे, बादशाह को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा. अब यहाँ बादशाह को कैद कर दिया जाएगा, रूलिंग फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा और उसके बाद इसके खिलाफ ट्रिलियन के चार्जेस चलाए जाएंगे. फिर कमिंग ईयर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. When national convention would be there in coming months. तो 10th अगस्त 9th को जैकोबिन्स पेरिस की म्युनिसिपल हुकूमत संभालते हैं. वही म्युनिसिपल गवर्नमेंट सेंसर प्लॉट्स के थ्रू नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिफॉर्म्स लेकर करेगी. नेक्स्ट बादशाह के महल के बाहर डेमोंस्ट्रेशंस होंगी, उसको स्टॉर्म किया जाएगा, बादशाह को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा. That is on 10th August. Hardly 8 दिन के अंदर ही the change would be there. And then, because war start हो चुकी है अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी हुकूमत वॉर कॉन्टिन्यूसली हार रही है. उस वॉर हारने के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही. और अब ये कॉन्टेक्स्ट था कि the foreign forces and they are about to enter Paris. They were almost closer to Paris. जब उनको ये लग रहा कि ऑस्मान के अगेंस्ट पर्शियन जर्मन्स पेरिस एंटर हो जाएंगे, पेरिस के अंदर रेवोल्यूशनरीज ने जो सियासी कैदी या स्विस मर्सनरीज जो बादशाह के कैद किए हुए थे, बजाय इसके कि फॉरेन ट्रूप्स पेरिस इन्वेड हैं और पेरिस को इन्वेड करें और प्रिजन सेंटर्स हैं उनको वो खाली करवा के उनको रिलीज करें, जो कि फिर फॉरेन ट्रूप्स का साथ देते हुए रेवोल्यूशनरी हुकूमत के खिलाफ लड़ें, तो बजाय इसके कि सियासी कैदी रेवोल्यूशनरी हुकूमत के खिलाफ लड़ें, वो उनको उन जेलों के अंदर उनके खिलाफ मैसेकर कमिट करेंगे, and that is known as Paris massacre. In the first month of September, because now foreign troops were about to enter Paris, before they entered and release the royalists
एंड स्विस मर्सनरीज जो बादशाह के नेशनल गार्ड्स थे, फॉरेन ट्रूप्स पेरिस एंटर होते इन मर्सनरीज को आजाद करवाते, सियासी कैदियों को आजाद करते जो कि फिर रेवोल्यूशनरी हुकूमत के खिलाफ लड़ते। इससे पहले कि ये कुछ होता, वो खुद पूरे पेरिस में फसादात होंगे, प्रिजन सेंटर्स हैं वहाँ, वाइंस कमिट किया जाएगा, ऑलमोस्ट 1100 से 1600 ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। दैट इज पेरिस मैसेकर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ September. We had the Paris massacre. So we covered, if we move back in June, July to July, Duke of Brunswick, June, July, August is Paris communes. And then 10th August, January 3, September Paris massacre. On 20th September, Paris, first month of September, Paris massacre हुआ, foreign troops were about to enter Paris. तो 20th September पे एक famous battle होगी जिसको कहते हैं Battle of Valmy. आगे कहीं आ जाएगी वो स्टोरी. Valmy was the famous battle, and that was the turning point. अब इस battle के बाद they would enter Paris. लेकिन इस battle के अंदर the course of war would be reversed. French forces would start winning the war. Battle of Waterloo में French revolutionary हुकूमत war जीतना start करेगी और foreign troops Paris enter नहीं हो पाएंगे, और फिर वो उनको पेरिस के साथ हराएंगे, फिर उनको पुश करते हुए वो फ्रांस से निकालेंगे, और फिर उनके मुल्कों को इन्वेड करते हुए पूरे यूरोप को सदा करने चाहेंगे. So they would change the course of the war and they would start winning. तो Valmy की battle would be turning point. French revolutionary हुकूमत war जीतना start करेगी. जैसे ही बैटल ऑफ वाल्मे में ये जीतेंगे, तो कौन सा फैक्शन था जो डिसीजन मेकिंग पावर्स के अंदर अब स्ट्रॉन्ग था, और वो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग या मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं? Paris community to Jacobins were the stronger players. They were now in the decision making process within national legislative assembly. इसके अंदर भी यही कॉन्स्टिट्यूटेड बात है. Eventually ये डिसाइड किया गया कि नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, नए इलेक्शंस करवाए जाए. इलेक्शंस हुए फिर सितंबर 20 को, 22 को 20 को the national convention will be here. तो नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करके उस आइन के मुताबिक इलेक्शंस हुए और नेशनल कन्वेंशन वाले पावर में आ गए, और उसको जैकबिन्स भी उसके अंदर होंगे और जैकबिन्स भी उसके अंदर होंगे. सर ये कैथोलिक्स को भी इन्होंने मारना क्यों शुरू किया? Because the clergy would side with it. You don't argue with these topics. The clergy or mercenary वो सारे दिखाते. जो सियासी कैंडिडेट clergy दिखाते हैं तो क्लास होंगे. mercenary जो भी मुदक्कात है जो कि बादशाहत के साथ खड़े थे उनके खिलाफ जो हमने सदा. Because revolution would be anti-revolution, secularism वो promote And status quo है. हर इतिहास में वही होगा. So September 20 September revolutionary government. This means the idea of constitutional monarchy or national convention set किया जाएगा कि delegates होंगे जो पूरे मुल्क को run करेंगे. So September 92 onwards national convention will be there. जिसमें कि delegates भी होंगे और सारे होंगे. But before I move towards the next point, यहाँ पे कुछ points I mentioned skill, and that was the major point. ये क्वेश्चन ये कि why they started doing the war? April, May, June, July, they were on a losing streak. War continuously आ रहे. फिर ऐसा क्या हुआ कि war जीत नहीं सके? Strong Communist system, and particularly these reforms. ये जो reforms एक तो उन्होंने executive के through military, police, justice को reforms किया, उन्होंने institutions को reorganize किया, और ये जो political decision making यहाँ पे की गई ये बहुत important है. Universal suffrage, right to vote everywhere. एक्सटेंड करेंगे भी मतलब कि गरीब तबके को भी राइट टू वोट दे जाए. Civilian population was armed. That is important point. यानी कि हुआ क्या, ये क्यों किया उन्होंने? Because वो जो revolutionary हुकूमत थी वो अपनी सर्वाइवल जो उनका था existential crisis फेस कर रही थी. The foreign troops were about to enter Paris और जो revolutionary हुकूमत थी वो अपनी existence खत्म कर रही थी. Existential crisis था उसको. उस अपनी existence को survive करने के लिए एक ultra radical जो है वो political decision making पावर के अंदर involve होंगे
और इस पूरी सिविलियन पॉपुलेशन को आर्म कर दिया जाएगा। यानी फ्रांस के अंदर रहने वाले लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। They would argue that the French fatherland is a danger. French fatherland is in a danger, and we, the people of France, are a nation, and we need to act together against foreign troops. We, the people of France, are different in the Austrians and the Germans, and we are the nation. That is nationalism. So nationalism के नजरियात को आइडियाज को क्या किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा और फिर पूरी फ्रेंच माशरे को वॉर फ्रंट के ऊपर इकट्ठा करके पूरा फ्रेंच माशरा जो है वॉर की तरफ जब जाएगा, the course of the war will be reversed. कहीं भी पूरी सिविलियन पॉपुलेशन वॉर नहीं किया गया। फ्यूडलिज्म था सारे मुल्कों में, ऑस्ट्रो-हंगेरिया में फ्यूडलिज्म था, जर्मनी में फ्यूडलिज्म था। फौज में कौन होंगे? अरिस्टोक्रेट्स में मिलेंगे। वो आके सामने लड़ेंगे तो नहीं है। वो तो वॉर ऑफ लड़ा करते थे, में वो 10-10 दिन राइफलें लेके वो चुटचुटान लेके खड़े रहते थे, कुल की लड़ाई करते। ये तो आके फुल टाइम ऑफेंसिव कोई वॉरफेयर लड़ेंगे और वायलेंस की तरफ जाएंगे। कॉमनर्स को तो एक्सेस चाहिए ताकत के लिए। उसको पता है कि मैं 10,000 लोगों को या 500 लोगों को अगर करूंगा, किल करूंगा, तो मैं तो आगे से आगे मूव करना चाहूंगा। तो यहाँ पे अब एक्सेस दिया गया पूरी सिविल पॉपुलेशन को, और फिर मेरिट की बुनियाद पे नेपोलियन जैसे लोग जो है फौज के हिस्सा बनेंगे, एंड दे विल चेंज द कोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस वॉर। पूरी सिविल जो आबादी थी, वी द फ्रेंच fatherland is in danger, we the people of France are different in the Austro-Hungarians and Germans, and we need to act together. Cohesiveness, integration, French society की, French nation की बात की जाएगी, और फिर सारे नेशनल रिसोर्सेज को वॉर फ्रंट के ऊपर मोबिलाइज किया जाएगा। एक्सप्रोप्रिएशन जिसको कहते हैं, आउट और कंस्क्रिप्शन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब भी जो रिक्रूटमेंट होती है सिविलियंस की फौज के, पूरा यूथ, पूरा फ्रेंच की जो यूथ था सबको कहा जाएगा वॉर में आओ। पूरे रिसोर्सेज को डायरेक्ट किया जाएगा टुवर्ड्स वॉर फ्रंट। यानी चर्च की वो बेल्स होती थी, वो जो आयरन की, उससे फिर वो वेपन्स बनाएंगे। जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे सारा वॉर के ऊपर उसको टर्न करेंगे। यूथ सारा वॉर में एंगेज होगा, बूढ़े लोग जो है वो सर्व करेंगे, पीछे खवातीन मिलिट्री सप्लाईज के अंदर इन्वॉल्व होंगी। तो पूरी फ्रेंच सोसाइटी को मोबिलाइज किया गया, आर्म किया गया वॉर फ्रंट की तरफ। एंड द आइडियाज वर देयर कि फ्रेंच जो कौम है, फ्रेंच जो रियासत है, उसको एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ना है, और हम एक कौम है और हमें एक कौम की तरह एक्ट करना चाहिए। और जब वो एक सिंगल नेशन की तरह एक्ट करेंगे तो फिर कोर्स ऑफ द वॉर चेंज कर दिया जाएगा, एंड दे वुड स्टार्ट विनिंग द वॉर। और यहाँ पे अब मर्सनरीज ना फौज थी और ना ऐसा था कि कॉमनर्स को एक्सेस नहीं थी, तो जो सबसे टैलेंटेड लोग होंगे वो उनको एक्सेस दी जाएगी पावर कॉरिडोर्स के अंदर, और वो फिर जस्टिस पे जो लोग होंगे वो देंगे। सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ द इमिग्रेसी कौन सा रिफॉर्म्स? इमिग्री से जो क्लर्जी जो पहले की फ्रांस को छोड़ के 92 तक बाहर जा चुकी थी, इनकी फ्रांस के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी रियासत उसको this is how the change would be. अभी कुछ और पॉइंट्स अगेन एंड रिवर्ट बैक टू ट्रम्प। तो ये क्वेश्चन पास लिस्ट में आया होगा कि रेवोल्यूशन फ्रांस का रेडिकलाइज हुआ, व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन रेडिकलाइज, वो ग्रेजुअली रेडिकलाइजेशन की तरफ हुआ। इश्यूज ऑफ इमिग्रेशन जो पहले की एरिस्टोक्रेसी क्लर्जी जो फ्रांस को छोड़ के बाहर सराउंडिंग कंट्रीज में गई, वो वहां की गवर्नमेंट्स को पुश कर रहे थे कि आप फ्रांस के अंदर हमला करें, वहां मोनार्की को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि सराउंडिंग में जितनी हुकूमतें थी वो मोनार्कीज, डायनेस्टिक रूलिंग फैमिलीज थी, बूर्बन स्पेन में हो या ऑस्ट्रो-हंगरी में हैब्सबर्ग्स हो, तो मोनार्कीज थी फ्रांस सराउंडिंग कंट्रीज में। इमिग्रेंट्स ने पुश किया सराउंडिंग स्टेट्स को, इवन रशिया को भी, कि फ्रांस में इंट्रूड करें और मोनार्की को रिस्टोर किया जाए। तो द थ्रेट केम फ्रॉम द इमिग्रेंट्स, वेनिस डिक्लेरेशन हो या ड्यूक ऑफ विंडसर की थ्रेट हो। तो इनकलाब के रेडिकलाइज होने की रीजन क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो हुकूमत थी, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली की या नेशनल कन्वेंशन की, तो जो उनको थ्रेट्स का सामना करना पड़ा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, तो इनसाइड फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि ग्रेजुअली फिर जब उनकी एग्जिस्टेंस स्टेट पे हुई, तो रेडिकल्स की बजाय एक्सट्रीम रेडिकल्स की ताकत में और फिर एक्सट्रीम डिसीजन मेकिंग की गई, एंड द कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन वुड रिटर्न, एंड
एंड रेडिकलाइजेशन का जो पाथ था वो भी हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सितंबर में तो उनको था कि हम गए, वो तो अपने वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे कि या हम मर जाएंगे सब के सब, हुकूमत तो गई हमारी। तो फिर एक्सट्रीम जो थे वो आए, और फिर वो जो उन्होंने डिसीजन मेकिंग की, पूरी सिविलियन पॉपुलेशन को आर्म किया, कॉम्युनिस्ट नेशनलिज्म के नजरियात को जो मैनिपुलेट किया, एंड दे वुड चेंज द कोर्स ऑफ द वॉर। तो एक रीजन radicalization की, the threats that the revolutionary government faced from outside of the world in a shape of immigrants issues, independence declaration in New Brunswick, we covered all those points. And role of the king was also intertwined. Fifth column, creative का role play किया बादशाह ने, Bernese का incident हो जब he tried to steal France, Tuileries II का incident, we covered all these points. The role of king ने भी इस इनकलाब को violent trajectory में लाने के लिए role play किया. Third is act of self-abnegation by the National Assembly of France, September 1792. Act of self-abnegation, National Assembly of France के members ने ये decide किया कि वो जब अक्टूबर में elections होने जा रहे थे उसमें participate किया. The result was that in September, Jacobeans और Jacobins जो radicals लोग थे वो अब power में आ गए. जो moderate revolutionaries थे वो power से Third East State declared itself the National Assembly of France. Third East State जब आपको National Assembly declare किया था, उनके members ने ये decide किया कि हम elections में participate नहीं करेंगे. तो नतीजा क्या हुआ? कि moderate revolutionaries के बजाय radicals आ गए, और Jacobin club ने जो है वो ताकत अपने पास में. National Legislative Assembly को पहले initially कौन dominate कर रहे थे? Radicals. They were radicals. और फिर इसी structure के अंदर extreme radicals आ गए. Radicals. तो जो मॉडर्न रेवोल्यूशनरीज पॉलिटिकल प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को जो है वो अपनी पावर, अपनी जो एक्टिविटी इसको खत्म कर दिया कि वो नए इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि जो नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली में, रेडिकल्स जो थे वो पावर में आ गए। तो दैट वाज द रीजन। और फिर जो नेशनल असेंबली, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसकी वजह से भी रेवोल्यूशन रेडिकलाइजेशन की तरफ गया। इकोनॉमिक एसेंशियल इकोनॉमिक They pursued laissez-faire economic policies. हुकूमत मार्केट में कमी नहीं करेगी, inflation would be there, other certain issues would be there. Pro business policies, price control mechanisms नहीं होंगे. So National Assembly of France, National Legislative Assembly of France ने जो माशी policies pursue की उससे लोगों के मसाइल हल नहीं हुए. गरीब तबके के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल नहीं हुए, और जब गरीब तबका मिडिल क्लास के इकोनॉमिक मसले हल नहीं होंगे, they would be on streets. And the mob was the violent machine of the revolution. तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो परस्यू की गई उसकी वजह से भी it would be a radicalization path. And the role of the crowd, the mob, the violent machine was the mob, the crowd. Saint-Sucrats and the revolutionaries वो जो थे पेरिस कम्यून वाले, तो जो क्राउड था वो इस इनकलाब को, जो मॉब था जिसको वायलेंट मशीन कहा जाता है, वो इस इनकलाब को रेडिकलाइजेशन की ट्रैजेक्टरी में उसको हायर पाथ्स पे ले जाएगा. Tuileries II इंसिडेंट हो, Paris Commune हो, Tuileries II हो, September massacre हो, इन सारे इंसिडेंट्स के अंदर it was the mob जो कि वायलेंट हुआ और फिर सारे वाक़यात. So mob was the fact that revolution क्यों radicalize हुआ, and then the clubs, Jacobins and Montagnards. Montagnards the Jacobins. So was term में confused हुआ. September में National Legislative Assembly dissolved हुई, National Convention came into power, और National Convention की वजह से तो further वो radicalization की तरफ जाएंगे. And of course, war was a major reason. War था major reason जिसकी वजह से ये इनकलाब radicalize होता चला गया. कुछ constant features रहे फ्रांस की revolution के अंदर. Throughout the revolution, radical influence increase होता चला जाएगा. Moderate National Assembly, moderate revolutionaries. National Legislative Assembly, radical revolutionaries. National Convention, extreme radical revolutionaries. तो कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन में ये चेंज आएगा. नेशनल असेंबली की मीटिंग्स, पब्लिक सेशंस होंगे, और जो एक्सट्रीम लाइंस लेंगे वो फिर पावर के अंदर आगे आते जाएंगे. रेवोल्यूशन अपने ही बच्चों को डबल करेगा, निकल जाएगा. नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली अपने नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मॉडरेट्स के खिलाफ एक्ट करेगी. नेशनल कन्वेंशन के लोग जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्ट करेंगे. यानी जो जो नेक्स्ट रूलर्स आएंगे वो प्रीवियस जो है रूलर्स के खिलाफ एक्ट करेंगे. जिसमें वो एक स्टेटमेंट की रेवोल्यूशन, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स were committed in that year. इस पे अक्सर
पहले आया करते थे 10 नंबर की 20 नंबर की स्टेटमेंट दिया करते थे प्रसिद्ध पेपर। तो जनरली वो जो खातून थी वो जनरली खातून थी क्लब की, उसने ये कहा ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाई कि लिबर्टी के नाम के ऊपर फ्रांस के अंदर जो कुछ फसादात हुए तो वो ठीक नहीं हुआ, और जो कुछ फिर आगे रेन ऑफ टेरर में ये करेंगे। तो रेन ऑफ टेरर के अंदर नेशनल कन्वेंशन सितंबर में आया। नेक्स्ट ईयर नेशनल कन्वेंशन के अंडर ये बनाएंगे अ कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, और उस कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को टेक ओवर करेंगे रॉब्सपेयर। नेशनल कन्वेंशन के अंदर एक कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी वुड बी जो 12 मेंबर्स का कंसिस्ट है, और उसको टेक ओवर करेंगे रॉब्सपेयर। और जब रॉब्सपेयर उस कमेटी को टेक ओवर करेंगे, फ्रांस would move towards republican, they would move toward reign of terror। तो reign of terror में Jacobins extreme radicals थे, तो they would act against the Germans। तो ये previous जो थे उनके खिलाफ एक्ट करेंगे, एग्जीक्यूशंस की जाएगी, यूनिवर्सल सफरेज की तरफ मूव करेंगे, ऑडिटरी वुड बी देयर, खातून को हकूक नहीं दिए गए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन दिया गया, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिमेन रहेंगी, the poor cases would remain there, clergy ज़्यादा easily defect करेंगे, neighbors would be there, leadership middle class होगी, upper classes अपनी version maintain नहीं कर पाएंगे, the constant features would remain back। ये question में भी discuss करा। And the last point is 91 से 93 के दरमियान फ्रांस के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई वो डिस्कस करें with respect to legislative assembly, foreign wars and national convention। देखिए अब वो खुद भी आपको कह रहे हैं कन्वेंशन कुछ और है, legislative assembly कुछ और है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप करें। तो इस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो if you talk about national legislative assembly, तो monarchy was badly humiliated, Bernie's incident, Tuileries 2, Tuileries 3 incident हो, तो 91 से 93 के टाइम पीरियड में monarchy को बुरी तरह से ट्रीट किया गया by the national legislative assembly। And then there was the issue of Avignon। Avignon फ्रांस के टेरिटरी थी जो पोप चर्च के कंट्रोल में, तो जब नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली पावर में आती है तो वो जो पोप की टेरिटरीज थी, जो इलाके थे, उसको नेशनलाइज कर देते, पोप की टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर देते, जिसके ऊपर हैब्सबर्ग्स ने रिएक्ट किया, ऑस्ट्रो-हंगेरियंस ने रिएक्ट किया, जब फ्रेंच नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पोप की टेरिटरीज को एक्वायर किया, नेशनलाइज किया, तो हैब्सबर्ग्स ने रिएक्ट किया, क्योंकि हैब्सबर्ग्स पोप को बैक करते थे, उनको सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो थी मिलिट्री कैंप्स में वो प्रोवाइड करते थे। तो इसलिए हैब्सबर्ग्स जो हाउस हैब्सबर्ग्स वो फिर कैथलिक चर्च को, कैथलिक पॉप को बैक करेगा। दैट इज द इशू ऑफ एविगनान, जिसमें कि नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पॉप की जब फ्रांस के अंदर जो टेरिटरीज थी, एविगनान वाज एरिया इनसाइड फ्रांस, बाहर नहीं था, फ्रांस के अंदर ये पोप की टेरिटरीज थी, जिसको नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली टेक ओवर करेगी, पॉप रिएक्ट करेगा और हैब्सबर्ग्स भी उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। एंड देन जर्मन प्रिंसेस, ये कुछ जर्मन प्रिंसेस की कुछ एरिया से फ्रांस के अंदर, इनकी टेरिटरीज को भी नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली टेक ओवर करेगी। तो अगेन जर्मन प्रिंसेस भी रिएक्ट करेंगे और हैब्सबर्ग्स भी इसके खिलाफ रिएक्ट करेंगे, बिकॉज दे वर गिविंग देम सिक्योरिटी अगेन। दैट वाज द जर्मन प्रिंसेस। 92 जनवरी 92 जनवरी 1792 वो जो अल्टीमेटम दिया गया बाय द नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट्स डिक्लेरेशन विड्रॉ कर, जब वो विड्रॉ नहीं करते तो फिर फ्रांस अप्रैल में वॉर डिक्लेयर करेगी अगेंस्ट ऑस्ट्रो-हंगेरियंस एंड प्रशियंस एंड सार्डिनियंस, इटालियंस। ये हम पहले कर चुके हैं, इसके बाद तो अबाउट कंप्लीटेड। एंड सितंबर बैटल ऑफ वॉल्वे, सीक्वेंस वो सारी देखेंगे। अप्रैल में वॉर शुरू हुई, एंड देन देयर वाज ट्यूलिरीज 2 इंसिडेंट, ट्यूलिरीज 2 के बाद क्या हुआ, ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक, पेरिस कम्यून, ट्यूलिरीज 2, पेरिस मैसेकर, एंड देन दिस बैटल ऑफ वॉल्वे भी नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको डिसॉल्व किया। जैसे ही नेशनल कन्वेंशन पावर में आया, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। September 19 France was declared as a republic. National convention came into power और delegates के through France को गवर्न किया गया। और फिर नेशनल कन्वेंशन में कुछ प्रोक्लेमेशन, नंबर 1 was कि अगर कोई भी यूरोपियन रियासत फ्रेंच नेशनल रेवोल्यूशनरी हुकूमत से मदद मांगेगी तो वो उनकी हेल्प करेंगे, और फ्रांस सराउंडिंग यूरोपियन कंट्रीज से अगर मोनार्की की शक्ल को मुल्क तोड़ना चाहते हैं तो उसको फैसिलिटेट करेंगे और दुनिया से मोनार्की को खत्म करने में विल हेल्प। एंड दिस डिक्लेरेशन वाज कि जिन एरियाज को रेवोल्यूशनरी हुकूमत करके करेगी वहां पे रेवोल्यूशनरी सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। एंड देन इनकमिंग फ्रेंच बेल्जियम पे अटैक करेंगे, फिर 93 के अंदर केन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फिर फ्रांस फेब
93 वॉर डिक्लेयर करेगी ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन एंड हॉलैंड। मार्च में फ्रांस वेंडे, एक शहर है फ्रांस में, वहां रिपोर्ट होगी नेशनल कन्वेंशन में, वो उसको क्रश कर देंगे। 20 के लिए पावर सितंबर 92 नेशनल कन्वेंशन के लिए पावर। हार्डली विद इन अ ईयर जून के अंदर क्या होगा, फ्रांस के अंदर नेशनल कन्वेंशन के अंदर ही जर्मनीज को अब साइडलाइन किया जाएगा और जैकबिन्स जो है वो उसको कंट्रोल करेंगे। जुलाई में यूरोपियन कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, रॉब्सपियर के कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को टेक ओवर करेगा एंड रेन ऑफ टेरर वुड बी देयर। तो सितंबर 92 से लेके till 1795 नेशनल कन्वेंशन was in power, और इसके अंदर कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड रेन ऑफ टेरर, ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर। 92 नेशनल कन्वेंशन, उस नेशनल कन्वेंशन के अंदर हार्डली जून के अंदर जर्मनीज को साइडलाइन करेंगे और कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाएंगे। उस कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को रॉब्सपियर टेक ओवर करेगा और रेन ऑफ टेरर का जो दौर है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड दे वुड रिमेन इन पावर टिल 95। And last point as again a political point, Montagnards, यानी कि Jacobins, they favored granting the poor classes more political power, जबकि जो Germans थे वो bourgeois republic की बात करना start कर दिए। Initially Germans were in favor of constitutional monarchy, resort की वो state, but later on they were in favor of bourgeois republic। ठीक है, फ्रांस रिपब्लिक से हम मूव करते तो कहा जब एडिशन की दूसरा एंड दूसरा मर्चेंट मिडिल क्लास का जो क्लास, बट जैकबिन्स वर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग मोर पावर टू द पुअर क्लासेस। गरीब तबके का कौन सा फलसफा बात करता है? सोशलिज्म। सो दैट इज हाउ दैट रेन ऑफ टेरर के अंदर सोशलिस्ट टेंडेंसीज हमें भी नजर आना स्टार्ट होंगी। डिस्प्ले में रियासत जो थी रॉब्सपियर के अंदर इट वुड बी रिपब्लिक। Republic means people's government, लोगों की हुकूमत, जब राज करेगी हल्के खुदा, that is basically what happened. Under Robespierre जब reign of terror start हुआ, France was a republic, और रिपब्लिक को कहा जाता है people's government, लोगों की हुकूमत, सबकी हुकूमत, राज करेगी हल्के खुदा। तो it was a socialism, क्योंकि socialism में लोगों की हुकूमत की बात की जाती है, सब dictatorship of proletariat की बात की जाती है, dictatorship in a sense of a general will। Dictatorship, military dictatorship की sense में dictatorship means general will of the proletariat, मजदूरों की, गरीबों की, सबकी हुकूमत। That is socialism का political system theoretically, practically ऐसा नहीं हुआ है। Theoretically socialism talks about the rule of the poor class, जब राज करेगी कल के खुदा, ये है एग्जैक्ट सोशलिज्म का सियासी स्ट्रक्चर। तो reign of terror में Jacobins were in favor of the rule of the people, the poor classes। तो ये रूसो के जो आइडियाज थे वो यहाँ पे इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट होते हैं कि फ्रांस would become a republic, it would be a people's government, लोगों की हुकूमत होगी, लोगों के लिए की जाएगी, रियासत मार्केट में इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करेगी, इंटरवीन करेगी, प्राइस मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करेगी, इन्फ्लेशन चेक की जाएगी, रिसोर्सेज को नेशनलाइज किया जाएगा। सोशलिज्म में ऐसे करना है, हुकूमत रिसोर्सेज को टेक ओवर करेगी, रिसोर्सेज को हुकूमत नेशनलाइज करेगी, उसको वॉर फ्रंट पे मैनिपुलेट करेगी, कंस्ट्रक्शन की पॉलिसीज होगी, मोर इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब रियासत स्ट्रांग होगी, लोगों को अपने साथ खड़ा करेगी एंड दे वुड बी कंट्रोलिंग दैट। तो इस तरह हमने किसी हद तक कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफीज को भी देखा, एक हमने पॉलिटिकल ट्रांजिशन देखी, absolutist monarchy and constitutional monarchy and republic. Then we also discussed the concept of liberalism and nationalism when they were fighting a war, और फिर कैसे nationalism को utilize किया गया, and eventually towards socialism during reign of terror. तो French Revolution के अंदर हमें liberalism, nationalism, socialism ये वाली philosophies भी reflect होती हुई नजर आती हैं। और politically it's a absolutist monarchy, constitutional monarchy, and then eventually towards republic। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, डेट्स भूल जाए, कोई पॉइंट एक अगर आता है भूल जाए, जैसे पेरिस क्लासिक है नहीं याद कोई बात, बट ओवरऑल ये जो आइडियाज हैं कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल कोर्स चेंज हुआ, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म के हालात कैसे हुए। तो जर्नली के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, डेट्स ना याद।
फ्रेंड्स चाहे भूल जाए वो मैटर नहीं करता, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी, दैट और अच्छे वर्ड्स में एक्सप्रेस करें, जो पूछा गया उसी बात को it's the people of France who are going to decide that who is going to become their representative. Was a national Declaration of Rights of Man and Citizens. Yes. Sir, by class study. No, it was the reason behind self-abnegation. Because I think the thought that अगर हम participate करेंगे तो it can be towards corruption या कुछ celibacy. The thought कि हम क्योंकि power में हैं, हम elections में अगर जाएंगे तो it can be labeled कि हम intrude करें, elections को manipulate करें. So I think that was the reason. There is no space for journalists. And journalism as well. The new class. इस सब ही reading is the National Legislative Assembly में ऐसा नहीं है कि Jacobins नहीं थे. The dominant group was journalists. Jacobins भी थे, सब सियासी जमातों की थोड़ी थोड़ी सीट्स होंगी. लेकिन journalists were the dominant players. National Legislative Assembly. So they refuse to participate. No, moderates refused to participate. Third is critical itself. National Assembly of France. So the members थे National Assembly of France, but they refused to participate in the elections of September 1791. This gets to National Legislative Assembly बनी. इसमें फिर Jacobins और Jacobins आए. फिर इसको डिसॉल्व करेंगे, नेशनल कन्वेंशन होगा जिसको जैकोबिन्स लिखो करेंगे, इवेंचुअली जैकोबिन्स जर्नलिस्ट को भी साइडलाइन करेंगे, जियोमेट्री पब्लिक सेफ्टी एंड मेन ऑफ डायरेक्ट. ये तीन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ वो पॉलिटिकल फिलॉसफी और लिबरलिज्म से मूव करते हैं नेशनलिज्म एंड देन सोशलिज्म, वो भी यहाँ पे होना चाहिए. The mayor of Kerala is created. कमेटी पब्लिक सेफ्टी, सी कमेटी की पब्लिक है, कमेटी पब्लिक सेफ्टी. पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये कब हो रहा है? हाँ, पोस्ट दिन के जरूर से कहा गया की बात कर रहा है. ये सन 1792 की बात है, क्योंकि अभी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी नेपोलियन एरा इज कंसीडर्ड एज द कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. But then why did the post-French Revolution phase has been marked by the rational and effective government in हाँ, पोस्ट रेवोल्यूशन इनकलाब के बाद रेवोल्यूशन कब खत्म होगा? 1815 में. 1815 के बाद पोस्ट रेवोल्यूशनरी फेज स्टार्ट होगा. जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी फेज था उसमें यूरोप के अंदर रैशनल गवर्नमेंट्स क्यों एस्टैब्लिश हुए, वो वहां पे जा रहा है. अभी हमने कॉजेस पढ़े हैं और 93 तक किए. सो इन नेक्स्ट क्लास में मूव टुवर्ड्स नेपोलियन So यानी specifically post-revolution जो French Revolution है वो 70s में खत्म नहीं हो. 1815 में खत्म हुआ. Napoleonic era is considered as a continuation of French Revolution. पहला टॉपिक क्या है? French Revolution, Napoleon, French Revolution. देखिए PSC ने भी यही काम किया. That French Revolution / Napoleonic era is considered as a continuation of French Revolution. अभी ये इनकलाब खत्म नहीं. अभी कुछ पार्ट है. In next class I talk discuss Napoleon. मेरी कल ही क्लास है. 15 days to complete हो जाएगा next